Sorry. God, you are the marvelous God, and you are Thank you, God, for this wonderful privilege and wonderful occasion that you're anything else but by thy grace and because of you only I'm here today in this Zoom platform behalf of our Holy Century Ministry. Father, thank you so much for this time as a special in my life that I'm going to hear the spiritual food. So, Father, as we are few in thy presence, we believe Spirit come and fall on us and let thy Spirit should guide us and help us so that we could worship you with truth and spirit of God. Though we maybe worship you few times, but that few times there should not have or anything else. So I submitting this Zoom platform, going to speak also. I'm submitting this Zoom platform. You just control and that you are you are the loving God. So you will be helping us and you have been helping us day-to-day life also. So thank you and praise your God. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for your each and every blessing in our life that we have been seeing in our life. Father, especially I pray for the Zoom platform as we have started already. So from the beginning to end, you just be the controller and one who is going to lead. You just give her the heavenly knowledge and wisdom so that through thy knowledge and wisdom things. In Jesus Christ's name I do pray. Amen. 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 May the God of hope hope fill you with the joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in a hope. Romans 15:13. Paul is saying that. So it's the fruit of the Spirit is a joy and hope and peace, is a peace of the heart. When we have a peace of the heart, we have the Spirit, we have the fruit of the Spirit, because this is the gift of, this is the fruit of the Holy Spirit. So let's not forget, my brother and sister, the fruit of the spirits in our life, they do work. We don't feel that way, but they do work. Holy Spirit does exist in our life. When we call into the Jesus, Jesus is the Spirit of God. He is the Holy Spirit. When he is living in us, when he gives us a peace and the joy, and our heart is so much peace and so much our heart is filled with the joy, that is the gift and that is the fruit of the Spirit. So आइए हम खुदावन की प्रस्तुश करेंगे. हमारे साथ रवि दीप है. मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदावन की प्रस्तुश में कोई गीत गाएं. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ. ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ. तो आइए प्रभु ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ. ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਨਾ ਟੱਕੇ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੇ. ਬਣ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਰਦਾ. ਮੂਸਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਰਾਹ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ. ਮੂਸਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਰਾਹ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ. ਲੜਦਾ ਏ ਜੰਗ ਓ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਆਪੇ, ਲੜਦਾ ਏ ਜੰਗ ਓ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਆਪੇ. ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇ ਫੌਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪੇ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇ ਫੌਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪੇ. ਲੜਦਾ ਏ ਜੰਗ ਓ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਆਪੇ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇ ਫੌਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪੇ.
युद्ध दा स्वामी मेरा स्वर्गी पिता अपने लोकां नू जताउणा जानदा मूसा ली बनाया जिन्ने पानियां च राह मेरे ली पहाड़ां नू हटाउणा जानदा मूसा ली बनाया जिन्ने पानियां च राह मेरे ली पहाड़ां नू हटाउणा जानदा जंगलां च पैदा कर देवे मच्छी रोटी मेरे ते नी आउण दिंदा कदे घड़ी औखी जंगलां च पैदा कर देवे मच्छी रोटी मेरे ते नी आउण दिंदा कदे घड़ी औखी अब्राहम इसहाक दा खुदा मेरियां जरूरतां च मेरा सारदा मूसा ली बनाया जिन्ने पानियां च राह मेरे ली पहाड़ां नू हटाउणा जानदा मूसा ली बनाया जिन्ने पानियां च राह मेरे ली पहाड़ां नू हटाउणा जानदा दुखां ते तूफानां वाले रुख दिंदा मोड़ मेरी कमजोरियां च यसू मेरा जोर दुख ते तूफानां दे रुख दिंदा मोड़ मेरी कमजोरियां च यसू मेरा योर मां नालों वध यसू करदा ए प्यार मैनू मेरे दुखां च हसाउणा जानदा मूसा ली बनाया जिन्ने पानियां च राह मेरे ली पहाड़ां नू हटाउणा जानदा मूसा ली बनाया जिन्ने पानियां च राह मेरे ली पहाड़ां नू हटाउणा जानदा मूसा ली बनाया जिन्ने पानियां च राह मेरे ली पहाड़ां नू हटाउणा जानदा लड़दा ए जंग होया होवा मेरी आपे लखां ते हजारां भावें फौजां मैनू जापे लड़दा ए जंग होया होवा मेरी आपे लखां ते हजारां भावें फौजां मैनू जापे युद्ध दा स्वामी मेरा स्वर्गी पिता अपने लोकां नू जताउणा जानदा मूसा ली बनाया जिन्ने पानियां च राह मेरे ली पहाड़ां नू हटाउणा जानदा मूसा ली बनाया जिन्ने पानियां च राह मेरे ली पहाड़ां नू हटाउणा जानदा हालेलुया सिस्टर जी आपका माइक बंद है, प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। Thank you, brother. Thank you. So the Holy Spirit gift is the free gift, but there's a condition. We can only receive the Holy Spirit when we have Jesus, when we believe in the Jesus. Jesus is the one who is the Holy Spirit. He is the Spirit of God. So he can come into our life and we accept him as a savior. And then it's easy to get him, when we try to decide from our heart, it's change our heart and we can, it's the Holy Spirit who change our heart. And then we come into the way of the sanctification in the Lord. So we can see the book of Acts say 2:38, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So we can see the gift of the Holy Spirit, and we can look in the back in the beginning that when Jesus came and the Holy Spirit ascended onto him, that was the message sent to us, this is how you fulfill the righteousness of God, by baptizing in the Father, Son, and the Holy Spirit. Then you will receive the Holy Spirit. Although he was the Spirit of God, he does not need the Spirit, but this was to show us, this is how you fulfill the righteousness of God. You repent and because Jesus was onto the earth to give us a direction, showed us, he was sending us the message verbally and by his gestures, what he was doing, as we see in the Luke 3:22. And the Holy Spirit descends on him in the bodily form like a dove, and the voice came from heaven, you are my beloved Son, with you I am well pleased.
if he is the Spirit of God, he was born with the Spirit of God, he was resurrected with the Spirit of God, he was walking with the Spirit of God, he is the Spirit of God. So why he need a baptism? Because he was, like I said, he was giving us, sending us the message, the believer should fulfill the righteousness of the God by repenting and by baptizing in the water, and then you will receive, then you will receive the gift of the Holy Spirit in the name of Lord Jesus Christ. We can see, as John the Baptist testified that, I give you the water baptism, but whomever coming after me will give you the gift, the baptism of the Spirit, which is the Holy Spirit. So my brothers and sisters, it is a very, very, Holy Spirit is necessity for our life, because if we don't have a Holy Spirit, we don't have a fruit of the gift. Our life is overwhelmed. We are restless. We are peaceless. We have no peace and we have no assurances. So when the Holy Spirit come into our life, it give us, the peace and fill us our joy, our heart with the joy, as I said. That's how, we know the Holy Spirit is working within us. So I have, मारिया से कहूंगी वो खुदा उनकी प्रस्तुति में कोई गीत गाएं। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती, खुदा उनकी वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, दौड़ने एक रोका आने वाला है, दौड़ने एक रोका आने वाला है, रूखे बादल छा रहे हैं, देखो सब कसरत की बारिश की सदा है, सुन लो सब, रूखे बादल छा रहे हैं, देखो सब कसरत की बारिश की सदा है, सुन लो सब, फिर से यहोवा में बरसाने वाला है, फिर से यहोवा में बरसाने वाला है, दौड़ने एक रोका आने वाला है, दौड़ने एक रोका आने वाला है, पेंतीकोस्त के शोले फिर से आएंगे, जोश से सारे दिल भी भरते जाएंगे, पेंतीकोस्त के शोले फिर से आएंगे, जोश से सारे दिल भी भरते जाएंगे, रूह की मैं यीशु ही पिलाने वाला है, रूह की मैं यीशु ही पिलाने वाला है, दौड़ने एक रोका आने वाला है, दौड़ने एक रोका आने वाला है, सूखी मुर्दा हड्डियां जो है बिखरी हुई जिंदा होंगी, रूह की जब भी आंधी चली, सूखी मुर्दा हड्डियां जो है बिखरी हुई जिंदा होंगी, रूह की जब भी आंधी चली, रूह का दम फिर फूंका जाने वाला है, रूह का दम फिर फूंका जाने वाला है, दौड़ने एक रोका आने वाला है, दौड़ने एक रोका
आने वाला है। बड़े बड़े पहाड़ भी ठहर ना पाएंगे, रूह की चोट से खुद ही गिरते जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ भी ठहर ना पाएंगे, रूह की चोट से खुद ही गिरते जाएंगे। हर टीला मैदान हो जाने वाला है, हर टीला मैदान हो जाने वाला है। दौड़ने एक रूह का आने वाला है, दौड़ने एक रूह का आने वाला है, दौड़ने एक रूह का आने वाला है। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So when we have a Holy Spirit in us, what does Holy Spirit do? We have all those gifts of God. We have those gift of God. The Holy Spirit gives us a wisdom of God. He gives us a wisdom. He gives us understanding. He tell us, what is right and what is wrong. He always working in our spirit, reminding us, what God wants us to do. What is the path, is the righteous path we have to go. He gives us, the spirit of counseling. He also gives us a spirit of knowledge. We have the knowledge, the worldly knowledge, and earthly knowledge and heavenly knowledge. It is the gift of the Holy Spirit. This is how the Holy Spirit works into us, because on the earth, in order to live, we need a wisdom, we need a guidance, we need a differentiate between good and bad. So that's what it does. When we have the Spirit of God into us, He gave us these all we carry all the gifts and all the understanding what God has, because the Spirit of God within us tell us, what is the attribute of God. And He also keep us into the fear of the Lord, which is very, very important, because the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. So we can say the spirit of the wisdom, Holy Spirit is the spirit of wisdoms, as Yesaiah say, 11 verse 2, the Spirit of the Lord will rest onto him. So onto him whom? The Lord Jesus Christ, the spirit of wisdom and of understanding, the spirit of counseling and of the might, the spirit of the knowledge and the fear of the Lord. Unto him, to the Lord, and also who is his believers too as well. Because without the wisdom, we cannot live onto the earth. So what the Holy Spirit does, He is the spirit of wisdom, give us a wisdom. I would say the science is the knowledge too. So this comes from the God, from the spirit of the wisdom. The science itself does not exist unless it's given from above. So I would say, everything, all the gift we carry into us, our spirit carry into us, and we are still living, that is because of the Spirit of God. So हम प्रस्तुति को जारी रखेंगे। मैं मारिया से कहूंगी कि वो खुदावन की प्रस्तुति में कोई एक और गीत गाएं, जब तक पास्टर रशीद हमें ज्वाइन करते हैं। उनका आज सर्मन है। जी आंटी जी, हालेलुया। तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की ममूरी मिले, हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की ममूरी मिले। और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए।
हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, वो लहू जो बहा चाहिए, वो लहू जो बहा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, यीशु सोचे नहीं करता, यीशु कुव्वत नहीं करता, यीशु सोचे नहीं करता, यीशु कुव्वत नहीं करता, और दिल बेनया चाहिए, और दिल बेनया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. खुदा Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. हमारे पास हमारे साथ पास्टर इरफान है। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो इस मीटिंग के लिए कंटिन्यू चलती मीटिंग के लिए दुआ करें, ब्लेसिंग चाहें, और जैसे भी खुदा उनके रूह आपको गाइड करता है आप दुआ करें। पास्टर जो इरफान है वो नहीं है। अच्छा, पास्टर इरफान नहीं है। चले आइए हम दुआ करते हैं। कुदुस कुदुस नहायत मेहरबान बाप, तू जो जिंदा आसमानी बाप है, हमारी जानों का लंगर, जानों का फिदे देने वाला खुदावंद है। पाक रूह तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू जो हमारे दरमियान है, हमारे अंदर रहता है, तू जो बाप और बेटा और रूह कुदुस है। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत गिफ्ट के लिए, अपनी हजूरी के लिए, अपनी प्रेजेंस के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस मीटिंग के लिए, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि जो तूने हमें वक्त दिया, तूने हमें हमारे कामों से निकाल कर यहाँ इकट्ठा किया है खुदाम, ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तुत करें आए खुदाम। तेरा शुक्र बजा लाते आए खुदाम, तेरी बारगाहों में हम दाखिल हो चुके हैं, तेरे गीत गाते हुए, तेरी मदद सराई करते हुए। Holy Spirit, or pour down onto each all of us, Lord, and fill us with your Spirit, Lord, and give us your peace, Lord. That is all we need, Lord. हमें सिर्फ तेरी रूह की जरूरत है, हमें तेरा रूह चाहिए, बाकी सब कुछ तेरा रूह करता है हमारे अंदर। हम उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, हम इस चलती हुई मीटिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे जो तेरा आए खुदा खादम है, जो आज कलाम सुनाने को वो जहां भी आए खुदा, तो उसको जल्द से जल्द लेकर आए खुदा, उसकी रास्ते की रुकावटों को रोक आए खुदा। और बाकी जितने पार्टिसिपेंट हमारे साथ नहीं है उनके लिए भी तेरा रहम, तेरा फजल, तेरे रूह की ममूरी चाहते हैं। हम सब के लिए तेरे रूह की ममूरी चाहते हैं, तेरे रूह का मस्सा चाहते हैं खुदा, ताकि हम इसको पहचाने और अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करें। खुदा ये तेरा रूह ही है जो हमें पक्के की खुशी बख्शता है खुदा। दुनिया में हम कितने जगह पे आए खुदा, परसिक्यूट किए जाते हैं, लेकिन फिर भी तेरा रूह हमें सुकून और पीस देता है खुदा। और आए खुदा हमें तेरे पीस, परफेक्ट पीस में रखता है, हमारे दिलों को खुशियों से भर देता है, हमारे अंदर चेंजेस करता है, हमें बाप के साथ मिलाता है, और हर वक्त बाप से हमारे लिए शफायत करता है, हमारी जरूरियात के लिए और हमारी जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए। इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप आसमानी। फिर से तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा कि इस मीटिंग को ब्लेस कर, और इस मीटिंग में आए खुदा हम सब आज आए खुदा
इस चीज से भर कर जाएं, ताकि आए खुदाम हमारी जिंदगी में हम अपनी हकीकी जिंदगी को हासिल करें आए खुदाम। और उसके लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ फिर से आए खुदाम, कहती हूँ कि इस मीटिंग का होल ले और इस मीटिंग में किसी किस्म की कोई इंटरप्शंस ना हो आए खुदाम, और ये मीटिंग स्मूथली एंड स्मूथली जाए आए खुदाम, और तेरी हुजूरी में मकबूल ठहरे। आज हमारी सारी दुआओं और मुनाजातों को भी तू सुनना, अपने प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मैं रविदीप से कहूंगी कि वो खुदावंद की प्रस्तुति में गीत गाएं। जी जी, आइए प्रभु की महिमा भजन गावांगे। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, 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 ओ मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा आराम ऐ, रात बेचैनियां ते दिन बदनाम ऐ, इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा आराम ऐ, रात बेचैनियां ते दिन बदनाम ऐ, सदा दे आराम दियां गल्लां, 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 ओ सदा दे आराम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, साडे हथ विच रोंदे दिन साडे अगले, मिल सानू एक दिन इन्हां दुखां दे बदले, साडे हथ विच रोंदे दिन साडे अगले, मिल सानू एक दिन इन्हां दुखां दे बदले, सोच के इनाम दियां गल्लां, 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 ओ सोच के इनाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, 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 ओ मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, सच्ची जान पा दिंदियां, सच्ची जान पा दिंदियां, सच्ची जान पा दिंदियां, दुखां दी दुपहर जदों आण के सताउंदी ए, दुखां दी दुपहर जदों आण के सताउंदी ए, अदन दे बाग दी सवेर याद आउंदी ए, अदन दे बाग दी
सवेरे याद आउंदी ए ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां 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 ओ ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां एक दिन छट जाना दुनिया दे शहर नूं फिर असी उड़ जाना नासरी दे शहर नूं एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नूं फिर असी उड़ जाना नासरी दे शहर नूं आखरी सलाम दियां गल्लां आखरी सलाम दियां गल्लां आखरी सलाम दियां गल्लां आखरी सलाम दियां गल्लां ओ आखरी सलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां 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 ओ मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां सच्ची जान पा दिंदियां सच्ची जान पा दिंदियां हालेलुया प्रभु आप सब नु बहुत आशीष ते बरकत दे धन्यवाद आमीन So, my brothers and sisters, without the Holy Spirit, we are nothing. We cannot fulfill the plans of God in our life, and we cannot do anything because the Holy Spirit work is what it does. He gives us a strength, and He awaken us. He gives us a new life. Even though we're in a desperate situation, and when Holy Spirit comes, even though we think we're going to commit a suicide, when Holy Spirit comes, He just suddenly fill us with, He empower us, and He gives us strength, and then we will think logically, and then He saves us. Because the children of the Lord, the Holy Spirit always know the children of Lords, and He knows where people need it. Because the Holy Spirit always, when you are when you are filled with the Holy Spirit, and when you walk with the Holy Spirit, God will always take you there where there's a situation and where you are needed. And that's how the work of the Spirit also in our life. And you know what? Jesus promised to us, Jesus said, you will receive the gift of the Spirit, the gift of the gift, and you will receive the helper when I am gone. That remember, I am with you till the end of the earth, the end of this world, which is the Satan system, then the ruling. He said that because of the Holy Spirit, that is Lord Jesus Christ is with us. When the Holy Spirit is with us, God is with us, because He is the Spirit of God. So we always are not left alone. He never leave us alone, as He promised. I will never leave you, never forsake you. How He will not leave us? Because of the Holy Spirit is living with us, and God is living with us. When the Holy Spirit is with us, we are full with the power. And so Jesus said, you can receive that. How? Because if you follow me, and if you love me, you follow me, and you follow my commandments, what I told you to do, then you will receive the gift. As the John 14, chapter 14, 15 to 17, Jesus said, if you love me, keep my commands. Mean like अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी बातें जो तुमसे मैंने कही हैं उन पे भी अमल करो, उन पे चलो.
And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, not just the one time, not just today and tomorrow, and it comes and goes. It say, if you love me and if you follow my command, the spirit of the advocate, the spirit of the God, which is Father, give it to you free in my name, will be with you forever. Forever mean there is no limitations, it is unlimited. It will be with us. The spirit of the truth, the world cannot accept him. दुनिया उसको कबूल नहीं कर सकती because they don't know Jesus Christ. They don't follow Jesus Christ. They don't love Jesus Christ. We do. When we do, then he gives us the spirit of the truth, the spirit of the Father and the Holy Spirit, because it's never sees him nor known him. So the Holy Spirit, Jesus is saying that, because those दुनिया जो है वो इसको ना तो देखती है और ना रिसीव कर सकती है. क्यों? क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करते, वो मुझे फॉलो नहीं करते. That's why they don't. But you do. What? You know him. He lives with you and will be within you forever. So this is how the Holy Spirit lives in us. Believer has to activate, a believer has to keep in mind the Holy Spirit is living with us through the Lord Jesus Christ. आइए हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं. आज का कलाम मैंने बताया कि पास्टर रशीद खुदा उनके कलाम की खिदमत करेंगे. तो मैं फिर हमारे साथ हनूक ने हमें ज्वाइन किया. मैं हनूक से कहूंगी कि वो खुदावन के कलाम के लिए कोर्स कराएं, फिर हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ेंगे. आपकी आवाज नहीं आ रही भाई. रशीद भाई आपका माइक ऑफ है. स्वर्ग से दो सुनो सदा दो दो सुनो सदा भूल जाओ तुम अपनी अपने नामों को अपनी इज्जत को चल पड़ो कलवरी की राहों पर उन कठिन तंग तरीन रास्तों पर चल पड़ो कलवरी की राहों पर उन कठिन तरीन रास्तों पर सदा सारी दुनिया की तुम ही अंजील हो मसीह की तुम ही उम्मीद
सारी दुनिया की बरगज़ी दो सुनो सदा रूठी भूखी दो सुनो सदा रूठी बरगज़ी दो सुनो सदा रूठी में भीगी सदाएं आती हैं कलवरी से सदाएं आती हैं मुँह में भीगी हवाएं आती हैं कलवरी से सदाएं आती हैं आज यीशु तुम्हें बुलाता है जख्म अपने तुम्हें दिखाता है आज यीशु तुम्हें बुलाता है जख्म अपने तुम्हें दिखाता है बरगज़ी दो सुनो सदा रूठी खरीदो सुनो सदा रूठी बरगज़ी दो सुनो सदा रूठी हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. What? क्या ही अच्छा गीत है कि बरगज़ी दो सुनो सदा रूह की, कि रूह को हमने सुनना है। आइए हमारे साथ पास्टर फयाज है, मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदावंद की कलाम के लिए दुआ करें। पास्टर रशीद, आपके बैग पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। वो दरअसल यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसी साइड पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कलाम कर इस वजह से। अच्छा चलें, ठीक है। आए हम दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें, खुदाम के हुजूर आज के खादम के लिए, आज के कलाम के लिए दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ओ खुदावन के लोगों, देखो बाइबल ऐलान करती है कि जो मेरे नाम से लोग कहलाते हैं वो दुआ करें और खुदावन तेरे चेहरे की तलाश करे, अपनी बुरी राहों को तरक करे। ओ खुदावन बाइबल हमें बता रही है, मेरे दोस्तों, भाइयों, लोगों, बाइबल हमें बता रही है कि हम बर्बादी के तरफ जा रहे हैं, आखिरी अयाम है और तरीकी जो है वो जमीन के चेहरे को छिपा रही है। खुदावन के कलाम को सुनो, खुदावन की आवाज को सुनो, और खुदावन ने जिस मकसद के लिए मुझे और हम सबको तख्लीक किया है वो ये है कि हम खुदावन की इबादत करें, जिंदा खुदा की इबादत करें, उससे उसका पाक रूह मांगे, उसके जलाल को देखें, रूह को देखें, उसके नाम की गवाही दें। ओ खुदावन देख, आदम की वजह से गुनाह दुनिया में आया, और लेकिन खुदावन हमने ये सीखा कि दूसरे आदमी की वजह से दुनिया में निजात आई। पाक कलाम में लिखा है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, यही खुदा की मर्जी है, यही खुदा की राह है। दुनिया की दोस्ती और दुनिया से प्यार खुदा की मुखालफत है। ओ खुदा पाक, खुदा तुम्हें फजल दे कि हम तुझ में रहें, और खुदा हम यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह के जरिया से दूसरों को माफ कर सकें और एक दूसरे को माफ कर सकें। हम उसकी बातें नहीं सुनते, हम कलाम की बातें नहीं सुनते, हम खुदा की बातें नहीं सुनते और अपनी राहों पर चले जाते हैं। और लेकिन खुदावन की ये मर्जी है कि हम खुदावन की पैरवी करें, उसके कलाम को सुने,
उसकी शहादतों को सुने, उसकी कज़ाओं को सुने, उसके हुक्मों को सुने और उस पर चले। ओ खुदावंद, वो आ रहा है, यीशु आ रहा है, वो जिंदों और मुर्दों की इदारत करने के लिए आ रहा है। ओ खुदावंद, देख खुदावंद, तबाही जो है, वो बर्बादी जो है नजदीक पहुंच गई है, अदालत जो है हमारे दरवाजों पर पहुंच गई है, इसलिए कि यीशु आ रहा है, खुदावंद आ रहे हैं। हम खुदा का शुक्र नहीं करते, हमें चाहिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें और हर नेमतों के लिए, यीशु के खून के वसीला के लिए, उसके खून बहाए जाने के लिए, उसकी सारी मोहब्बत के लिए, उसके सारे फिदिया के लिए जिससे उसने शिफा को जारी किया और हर किस्म की बरकत दी। और हम में से हर एक तौबा करे, अपने आप को संभाले, बपतिस्मा ले। ओ खुदा, जिस तरह ईद पेंतीकोस के दिन खुदा, जब तेरा बंदा पतरस कलाम सुनाता है और लोग कहते हैं अब हम क्या करें, पतरस कहता है तौबा करो, गुनाहों का इकरार करो, गुनाहों की माफी मांगो, बपतिस्मा लो, तो फिर तुम रूह को उस इनाम पर पाओगे। देख, मैं आज जो तेरा खुदावंद खादिम है, कलाम सुनाने वाला है, उस पर तेरे पाक रूह को मांगता हूँ, उसकी जबान पर, उसके दिल पर, उसकी सोचों पर पाक खुदा तेरा पहरा हो जाए, तेरा पाक रूह चढ़ जाए। वो ना बोले, तेरा पाक रूह उसमें से होके बोले, उसकी जबान का जमाले, अल्फाज की तरतीब दे, अपनी हिकमत और तनाई से ममूर कर। हम किसी इंसान की आवाज को न सुने, हम तेरी आवाज को सुने, हम तेरे जिंदा कलाम को सुने। अपने पाक रूह को अंडेल यीशु नासरी, हर एक पर अपना पाक रूह अंडेल, और जितने लोग इस कलाम को सुने खुदा, उन पर भी तेरे पाक रूह का मसा आ जाए, वो भी बरकत पाए और तेरी निजात को कबूल करें और ये ऐलान करना शुरू कर दे कि यीशु आ रहा है और यीशु ही खुदा है और यीशु ही मसीह है। जीसस क्राइस्ट। खुदा, मैं अपने आप को भी तेरे हुजूर सरेंडर करता हूँ, झुकाता हूँ, ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं और बरकत पा सकूं। हर एक को बरकत मिले यीशु के नाम से, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। जब होली स्पिरिट हमारी लाइफ में होता है, then we become the witness of Lord Jesus Christ, because he gives us the power to speak and give us a witness. इसीलिए हम bravery से, boldly we speak about the Lord Jesus Christ. We give the witness that he is the Savior, he is the Messiah. Because of the power of the Holy Spirit, we do speak it. Without the power of the Holy Spirit, we will not speak and give a witness of the Lord Jesus Christ. आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने माइक अनम्यूट करके खुदा उनके कलाम को अपने दरमियान वेलकम करेंगे और खुदा उनके बंदा को और खुदा उनके बंदा के लिए खुदा उनकी बरकत चाहेंगे, ताकि आज रूह हमसे कलाम करे और देखे कि खुदा उनके दिल में हमारे लिए क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, खुदा के कलाम के लिए, क्योंकि खुदा ने सबसे ज्यादा इज्जत और तज़ीम अपने कलाम को दी है। सो इससे पेशतर कि हम रूह कुदस के तलक से आज सीखें, आए उसी पाक रूह से हम इस फिजा को, माहौल को, इंटरनेट को पाक और साफ करते हैं। छोटी सी दुआ करेंगे, इसके बाद हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। खुदा कदूस, बहरबर के खालिक और मालिक, Hallelujah. Hallelujah. The Lord God. हम तेरे पाक रूह से पाक और साफ करता हूं। और खुदावंद, आज तेरे कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियों की नौबत तौबा तक पहुंचे, क्योंकि खुदावंद तू किसी बशर की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा तू चाहता है कि तेरे लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आसमानी खुदा, तेरा कलाम आज लोगों को कसरत की जिंदगी से मालामाल करे। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं, आमीन। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों,
खुदा का कलाम जो तसल्ली और दिलेरी से भरा है। सो मैं आज शाम आज रात आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे नाकदीन इस बात को करते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो तब्दील हो गई। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि कलामे मुकद्दस जो है वो तब्दील हो गई है या इसको तब्दील कर दिया गया। लेकिन मैं आज शाम आज रात आपको बताना चाहता हूं कि ये कलामे खुदा रूहुल कुद्दस की हदायत से लिखा गया है और आप इसको रूहुल कुद्दस की हदायत के वसीला ही से समझ सकते हैं। और यही वो कलाम है जो जिंदगियों को, गिरानों को, खानदानों को, शहरों को, मुल्कों को तब्दील करता है। हालेलुया। सो आज यही कलाम जो है वो आज जिंदगियों को आजाद और रिहा करेगा। आज का जो मेरा मजमून है वो है रूहुल कुद्दस का नज़ूल। सो इससे पेशतर हमने बहुत बार खुदा के कलाम को सीखा, लेकिन आज हम चंद मिनटों के लिए खुदा के कलाम को सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में से इमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा से लेकर 4थी आयत मुकद्दसा तक हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हमारे साथ ब्रदर अनूप हैं, वो तलावत में रहनुमाई फरमाएंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दे, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से आज हम सब जितने भी हैं कसरत की बरकत को हासिल करने वाले हों। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, कलाम खुदा का जो हिस्सा अभी मेरे प्यारे भाई मुबश्शिर हनूक ने विर्द किया है और हम सबों ने सुना है। सो ईद पेंतिकोस्त के दिन जब तमाम वो 120 की जमात के लोग जो है वो उस जगह पर जमा थे और वो खुदा की हजूरी में मौजूद थे। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं आपको खुदा के पाक रूह के बारे में बताना चाहता हूं कि खुदा का रूह, जिसे हम रूहुल कुद्दस भी कहते हैं, ये इब्तदा ही से जो है वो हमारे साथ है, पहले दिन से ही। सो जब हम कलाम खुदा का यानी कि अंजील जलील का मुताला करते हैं, पैदाइश की किताब, पुराना एहदनामा, उसकी पहली आयत मुकद्दसा का, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश करता था। यानी कि डे 1 से ही खुदा की पाक हजूरी जो है वो उसके लोगों के साथ थी। और कलाम मुकद्दस रूहुल कुद्दस के बारे में मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। जब पुराने एहदनामा में खुदा का पाक रूह कोई काम करता, कोई मौजज़ा करता, तो उस वक्त आसमान खुलता और आसमान से खुदा का पाक रूह नाजिल होता और वो काम को करता और फिर वापस जो है वो आसमान की तरफ उठा लिया जाता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम फजल के दौर में हैं। आज खुदावन ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से आज हमारी जिंदगियों पर
गहरा फजल किया है। और आज खुदा का पाखरू जो मेरे और आपके लिए एक मददगार की सूरत में हमेशा हमारे साथ रहता है, अब वो जाता नहीं है, क्योंकि पाखरू जो मेरी और आपकी शफायत करता है। जब मेरे और आपके मसीहा यीशु मसीह इस रूह जमीन से गए तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं, यानी कि रूह कुदस। जब ये 120 की जमात पर नाजिल हुआ, जब रूह कुदस का नज़ूल हुआ, तो इससे पेशतर हम देखते हैं कि ये तमाम लोग जो है वो कमजोरी की हालत में, ये तमाम डरे हुए, ये तमाम सहमे हुए लोग हैं। ये इस डर में है कि कहीं ऐसा ना हो कि रोमी सिपाही आए और हमें भी जो है वो संसार ना कर दे। और ये एक जगह छुप कर जो है वो खुदा की हुजूरी में मौजूद है। लेकिन यीशु मसीह जिसके वसीला से यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा में लिखा है कि ये तमाम चीजें यीशु मसीह के वसीला से पैदा की गई। और यीशु मसीह चूंकि मेरे और आपके मसीहा ने जब वो आसमान पर गए तो उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ एक वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। सो उसका वादा जो है, मेरे और आपके यीशु ने, जब ये तमाम लोग 120 की जमात खुदावंद की पाक हजूरी में मौजूद थी, तो खुदा ने रूह कुदस को जारी किया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रूह कुदस जो है वो कमजोरों को जोरावर करता है। ये लोग जो कमजोरी की हालत में थे, ये लोग जो डर की हालत में थे, जी मुबश्शिर इसकी चौथी आयत मुकद्दसा को पढ़े एक बार फिर से। सो खुदा का पाक रूह जो है वो ताकत और दिलेरी को जारी करता है जी। और वो सब रूह कुदस से भर गए, और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हाँ जी, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, यानी कि कुव्वत, दिलेरी। आप देखें कि जब यीशु मसीह को सलीब दिया जाना था, तो यीशु मसीह का एक शागिर्द जो बहुत ही जोशीला है, जिसे जोशीला शागिर्द भी कहा जाता है, यानी कि पतरस रसूल। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, पतरस रसूल जो है वो यीशु मसीह से कहता है कि मैं भी तेरे साथ सलीब पर जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह जो दिल और गुर्दे को जांचने वाला खुदा है, उसने कहा कि तू सुबह होने से पहले, मुर्गे बांग देने से पहले, पतरस तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। क्योंकि ये कमजोरी की हालत में था। पतरस रसूल था तो जोशीला, लेकिन उसके अंदर रूह कुदस की कुव्वत और कुदरत नहीं थी। उसके अंदर दहशत की रूह थी, डर की रूह थी, खौफ की स्पिरिट जो है वो उसमें काम कर रही थी। और जब पहली बार उसको पहचाना गया कि ये तो वही है, उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर उसने डिनाई किया कि नहीं जी, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता।
मेरा यीशु मसीह से कोई वास्ता और तल्लक नहीं है, लेकिन वो दावा बड़ा करता है कि जी मैं यीशु के साथ जो है वो सलीब पर भी जाऊंगा। लेकिन क्योंकि पतरस रसूल के अंदर जो है वो उस वक्त खौफ की स्पिरिट काम कर रही थी, उसके दिल के अंदर डर था, खौफ था कि अगर मैंने आज मसीह का इकरार किया तो ये मुझे भी सलीब पर चढ़ा देंगे। अगर मैंने आज इस बात को मान लिया तो ये आज एक बार फिर से जो है वो मुझे सजा देंगे, मुझे सलीब पर लटकाएंगे और मेरे साथ और मेरे जिस्म पर जो है वो बुरा भला और मेरे साथ जो है वो जुल्म सितम करेंगे। क्योंकि जब उसके अंदर ये डर की स्पिरिट आई, उसने 3 बार जो है वो मेरे और आपके मसीहा का इनकार किया। वो 3 बार इस बात को डिनाई करता है, वो 3 बार इस बात का इनकार करता है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, कलाम में खुदा इस बात की तस्दीक करता है जब वो रूह कुद्दूस से भर गए और फिर वो गैर जुबानें बोलने लगे। जिस तरह खुदा के पाक रूह ने इन्हें बोलने की ताकत बख्शी, जिस तरह खुदा के पाक रूह ने इनकी जिंदगी के मुताबिक जैसे भी खुदा के पाक रूह ने इन्हें ताकत बख्शी, आज भी देखें खुदा के खादमीन जो मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, मुख्तलिफ गांव में रहते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे खुदा का पाक रूह उन्हें गाइडेंस देता है, जैसे जैसे खुदा का पाक रूह उन्हें कुव्वत देता है, जैसे जैसे खुदा का पाक रूह उन्हें दिलेरी देता है, वो खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, चाहे वो किसी भी कौम से जो है वो मसीहत में आया हो। अब कुछ लोग जो है वो हिंदू मजहब छोड़कर जो है वो मसीहत में आए, कुछ जो है जिन्होंने और दूसरे मजहब को छोड़ा और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, और आज ये तमाम लोग जो है वो अंजील की बुरादी करते हैं। ये तमाम लोग आज मसीहत का प्रचार करते हैं क्योंकि उनके अंदर से खुदा के पाक रूह ने सारे डर को, सारे खौफ को और सारी उस सुस्ती को खत्म किया है जो डर को पैदा करती है। मेरी बहनों और बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, क्योंकि खुदा का पाक रूह जो है वो हमें कुव्वत और दलेरी देता है। कलाम खुदा जो कि किसी का तरफदार नहीं है, मुताबिक मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा जब हम मुताला करते हैं तो इसमें साफ साफ जो है वो पाक रूह की कुदरत के बारे में लिखा है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। मेरे अजीज बहन भाइयों, कलाम खुदा इस बात की तस्दीक करता है कि मेरे और आपके मसीहा की पैदाइश, जो कुल जहान का खुदा है, जो मुनज्जी आलम है, यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है कि जब उसकी मंगनी यूसुफ नामी शख्स के साथ हो गई तो कलाम खुदा में लिखा है तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। ये वही रूह है जो बनाए आलम से ही साथ साथ है। और जब यूसुफ को इस बात का पता चलता है
तो जब आप मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत मुकस्सा को और उसका मुताला करेंगे, वो इन बातों के बारे में सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। अब यहां पर देखें कि इब्लीस जो अपना काम करता है, उसने यूसुफ की जिंदगी में भी काम किया, और आज भी जिस रूह ज़मीन पर मैं और आप रहते हैं, इब्लीस बड़ी तेजी से काम करता है। चाहे वो घर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मिनिस्ट्रीज हो, चाहे वो कोई भी ऐसी जगह हो जहां पर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर आज भी इब्लीस इसी बात का प्रचार करता है। और यहां पर भी यूसुफ जो है वो इस बात से बदजन हो गया और उसने जो है वो मुकद्दसा मरियम को छोड़ने का इरादा किया। लेकिन पाक रूह जो दिलेरी देता है, खुदा का पाक रूह जो कुव्वत देता है, खुदा का पाक रूह जो ताकत से भरता है, इसी पाक रूह ने यूसुफ से कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। वो डर गया कि लोग मुझे ताने मारेंगे, लोग मुझे तरह तरह की बातें करेंगे कि इसकी बीवी जो है वो शादी से पहले ही जो है वो मां बनने वाली है, या वो पेट से है। ये सारा कुछ इब्लीस जो है वो उसकी जिंदगी में काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही खुदा के पाक रूह ने उसे आकर कुव्वत बख्शी, उसे आकर दिलेरी बख्शी, तो खुदा के पाक रूह ने उसकी जिंदगी में काम किया। खुदा के पाक रूह ने उसकी जिंदगी में कुव्वत को जारी किया। इससे पेशतर मैंने आपको पतरस रसूल के बारे में बताया। जब वो डर की स्पिरिट में था, जब वो खौफ की स्पिरिट में था, उसने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया, क्योंकि खौफ की स्पिरिट जो है वो आपको गिराती है। खौफ की स्पिरिट जो है वो आपको लिटा देती है। खौफ की स्पिरिट जो है वो आपको पीछे कर देती है। खौफ की स्पिरिट जो है वो आपको गिरा देती है। और आज मैं आपको एक बात बड़े ही वसूख से कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने खुदा के कलाम में से सीखा, कमाल की किताब उसका दूसरा बाब, कि जब खुदा का पाक रूह उस जगह पर जारी हुआ तो उनको आग की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उन पर आन ठहरी। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, आज शाम, आज रात में आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपके ईमान को बढ़ाना चाहता हूं कि आज भी खुदा का पाक रूह उसी दिलेरी के साथ काम करता है। और खुदा का पाक रूह कभी भी इंसान को गिराता नहीं है। खुदा का पाक रूह कभी भी इंसान को गिराता नहीं है। और खुदा का पाक रूह कभी भी इंसान को कमजोर नहीं करता। आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, आज अपने अपने माइक को अनम्यूट कर मुझे बताएं कि जब कोई शख्स कमजोर होता है तो क्या वो अपने कदमों पर खड़ा रह सकता है? मैं आपके जवाब का मुंतजर हूं। जब कोई भी इंसान, उसके बदन के अंदर कुव्वत ना हो, उसके बदन के अंदर ताकत ना हो, तो क्या कोई भी शख्स अपने कदमों पर खड़ा रह सकता है? यस, नहीं खड़ा रह सकता। और इसकी मेरे बिल्कुल। पास गवाही भी है। मैं हरगिज़ नहीं, हरगिज नहीं। क्योंकि उसके अंदर कुव्वत नहीं है। लेकिन मैं आज आपके खुदा का पाक रूह दिलेरी को जारी करता है, खुदा का पाक रूह कुव्वत को जारी करता है, खुदा का पाक रूह ताकत को जारी करता है। जिस तरह उसने 120 की जमात में अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को जारी और सारी किया। लेकिन आज शुरू से आज जब बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं तो लोगों को टच करके गिराया जाता है। खुदा का पाक रूह कभी भी गिराता नहीं है। खुदा का पाक रूह कभी भी डर की स्पिरिट को पैदा नहीं करता। खुदा का पाक रूह कभी भी लोगों को कमजोर नहीं करता। इब्लीस का काम है लोगों को कमजोर करना। खुदा के पाक रूह का
काम है लोगों को कुव्वत से भरना, लोगों को दिलेरी से भरना। और कलाम खुदा इस बात की तस्दीक करता है कि जब रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ तो वो कुव्वत से भर गए। वो जो डर की स्पिरिट थी वो खत्म हो गई। अब पतरस रसूल जो इससे पेशतर डर की स्पिरिट में है, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ होने का डिनाई करता है, इनकार करता है। लेकिन फिर ये वही पतरस रसूल है, जब खुदा का पाक रूह इसकी जिंदगी में आता है, तो जब ये पहली मुनादी करता है, जब ये पहली मुनादी करता है, तो खुदा का पाक रूह कसरत से काम करता है। और जब ये कमजोर है तो ये एक छोटी सी बच्ची से डर जाता है, एक औरत से डर जाता है, इनकार कर देता है, डिनाई कर देता है, क्योंकि उसके अंदर डर की स्पिरिट है, उसके अंदर खौफ की स्पिरिट है। लेकिन जैसे ही वो पाक रूह से भर जाता है, पाक रूह की ममूरी से भर जाता है, और जब वो शिकार करता है तो 5000 लोगों का शिकार करता है, जब वो शिकार करता है तो 3000 लोगों का शिकार करता है। ये खुदा के पाक रूह की कुव्वत और कुदरत है। और जब खुदा के पाक रूह की कुव्वत और कुदरत काम करती है, तो फिर ये कमजोर नहीं करती, ये जोरावर करती है। ये इंसानों को कमजोर नहीं करती, ये इंसानों को इस कदर गुमराह नहीं करती कि इंसान गिर जाए। खुदा के पाक रूह का काम है उठा खड़ा करना, खुदा के पाक रूह का काम है बहाल करना, खुदा के पाक रूह का काम है अपने कदमों पर खड़ा कर देना। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, कलाम खुदा में से एक हवाला मेरे साथ जरा देखिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा। अब यूहन्ना जो लोगों को बपतिस्मे देता है, वो अब यीशु मसीह के बारे, कुदरत के बारे में और रूह कुद्दस की कुदरत के बारे में कुछ क्यों कहता है? मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद में आता है वो मुझसे जोरावर है। यीशु मसीह जोरावर है और यीशु मसीह कमजोरों में जोर बरता है, यीशु मसीह कमजोरों में कुव्वत को बरता है। और इस बात को जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है कि जो मेरे बाद में आता है वो मुझसे भी ज्यादा जोरावर है। और जब आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत होगी, पाक रूह की कुदरत होगी, तो फिर आप कमजोर नहीं है। फिर आप कैसे गिर सकते हैं? जब इब्लीस जिंदगियों में काम करता है, जब इब्लीस गुमराह करता है, तो लोग गिर जाते हैं, लोग असीरी में चले जाते हैं, लोग गुलामी में चले जाते हैं। लेकिन खुदा का पाक रूह जोर और कुव्वत को जारी करता है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, यूहन्ना इस बात को लिखता है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। कितनी बड़ी बात है। एक नबी यीशु मसीह की कुदरत के बारे में बयान करता है कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं उसकी जूतियां उठा सकूं, मैं इस लायक नहीं हूं। वो तुमको रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यानी कि वो खुदावंद यीशु मसीह के जोर के बारे में लोगों को बता रहा है, वो रूह कुद्दस की कुदरत के बारे में बता रहा है कि जो मेरे बाद में आता है वो मुझसे बहुत जोरावर है, वो तुम्हें जोर, कुव्वत, दिलेरी से भर देगा। फिर आपकी जिंदगी के अंदर डर की स्पिरिट नहीं रहेगी, दहशत की रूह नहीं रहेगी, बल्कि आपके अंदर दिलेरी का रूह। आप दिलेरी से खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे, आप दिलेरी से जाकर अंजील की मुनादी करेंगे, आप दिलेरी से जाकर लोगों को खुदा का कलाम सुनाएंगे, आप दिलेरी से जो है वो खुदा के काम को सरअंजाम देंगे। क्योंकि जब खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करेगा, तो फिर इब्लीस का कोई भी मंसूबा, इब्लीस की कोई भी चाल, इब्लीस की कोई भी शरारत आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं एक बात आज आपको खुदा के कलाम में से सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 12वां बाब और उसकी 32वीं आयत मुकद्दसा में साफ साफ लिखा है, जरा पढ़ लीजिए।
और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ की जाएगी। यानी कि अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी कुछ कहता है तो उसकी भी माफी है। इब्ने आदम मेरा और आपका यीशु है। और आगे लिखा है, मगर जो कोई रूह कुदस के खिलाफ, रूह कुदस के बरखिलाफ बात कहेगा, सिर्फ बात करनी है, बस 2-4 लफ्ज कह देने हैं। अगर कोई ऐसा भी करेगा तो बाइबल मुकद्दस इस बात के बारे में बयान करती है वो उसे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले में। ये जरा समझने की बात है कि इब्ने आदम के खिलाफ अगर कोई बात कही जाती है तो उसकी माफी है, उससे आप बच सकते हैं। लेकिन अगर खुदा के पाक रूह के बरखिलाफ कोई भी बात की जाएगी तो बाइबल मुकद्दस, खुदा का लफानी कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि जो कोई भी पाक रूह के बरखिलाफ गुनाह करेगा फिर उसकी माफी जो है ना तो इस आलम में है और ना उस आलम में है। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा का पाक रूह जो हमें कुव्वत और दिलेरी से भरता है, जो हमें ताकत से भरता है, वो कभी भी अपने लोगों को कमजोर नहीं करता, वो कभी भी अपने लोगों को गिराता नहीं है, बल्कि वो अपने लोगों को बहाल करता है, वो अपने लोगों को उठा खड़ा करता है। और जो ग्रेट कमीशन है, जो बाइबल मुकद्दस और खुदा का बेटा यीशु मसीह मुझे और आपको ग्रेट कमीशन देता है, यानी कि अरशादे आजम, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत मुकस्सा में लिखा है, बस तुम जाओ, जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये वो ग्रेट कमीशन है। खुदा ने पाक रूह इसलिए जारी किया, खुदा ने अपना पाक रूह अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर इसलिए जारी किया ताकि वो पाक रूह से भर जाएं और फिर पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस का खुदा कहता है कि मैंने अपने लोगों को सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो मेरी हम्द करें, ताकि वो मेरी सताइश करें, ताकि वो मेरे नाम को जलाल दें, ताकि वो जाकर कौमों, कबीलों और उम्मतों को जो है वो अंजील की मुनादी सुनाए, ताकि वो बहुत सारे लोगों को जो है वो खुदा के कलाम के लिए तैयार करे, ताकि बहुत सारी रूहें जो है वो आसमानी मुकाम के लिए तैयार हो जाए और उस बादशाही के लिए तैयार हो जाए जो बनाए आलम से खुदा ने अपने लोगों के लिए बनाई। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा का पाक रूह को जारी करने का यही मकसद था कि हम जाएं दुनिया भर में, जाकर अंजील की मुनादी करें, डर के स्पिरिट के साथ नहीं, खौफ के स्पिरिट के साथ नहीं, बल्कि दिलेरी के साथ। और जब ये कलाम रसूलों पर जारी हुआ, जब पाक रूह रसूलों पर जारी हुआ, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर वो दिलेरी से अंजील की मुनादी करने लगे। वो दिलेरी से उन इलाकों में गए जहां पर जाना उनके लिए नामुमकिन था, वो उन शहरों में गए, वो उन देहातों में गए, वो उन इलाकों में गए जहां पर जाकर अंजील की मुनादी करना बड़ा मुश्किल था। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, इस रूहे जमीन पर भी अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी तक खुदा का लफानी कलाम नहीं पहुंचा, बाइबल मुकद्दस नहीं पहुंची। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हमने इस ग्रेट कमीशन को जो है वो पूरा करना है, हमने इस कलाम को जो है वो लेकर जाना है, हमने इस कलाम को जो है वो आगे बढ़ाना है। सो मैं एक और हवाला आपके सामने पढ़ देता हूँ। मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 3रा बाब और उसकी 29वीं आयत मुकस्सा, सॉरी, कलाम मुकद्दस में लिखा है, मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 3रा बाब और उसकी 29वीं आयत मुकस्सा। लेकिन जो कोई रूह कुदस के हक में कुफर बके वो अब तक माफी ना पाएगा, बल्कि अबदी गुनाह का कसूरवार है। खुदा का कलाम जो किसी का तरफदार नहीं है, लेकिन जो कोई
रूल के के हक में कुफर बके वो अब तक माफी ना पाएगा, बल्कि अबदी गुनाह का कसूरवार है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्ग नौजवानों, क्योंकि खुदा का पाक रूह इसलिए हमें मिला ताकि हम जाएं और जाकर अंजील की मुनादी करें उन लोगों को जो पिसे हुए हैं, जो गिरे हुए हैं, जो दुनिया की अफसूदा रस्मों में पड़े हुए हैं, जो दुनिया के अनोखे कामों में मुब्तला हैं। आज हमें इस कलाम को उन लोगों तक लेकर जाने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम कमजोरी में लोगों को जोरावर करता है, कमजोरी में वो शेजोरी से भर देता है। खुदा का पाक रूह जिस जगह पर आता है वहां मुर्दे जो कब्रों के अंदर लेटे होते हैं वो भी कब्रों से बाहर आ जाते हैं। हालेलुया, ये खुदा के पाक रूह का काम है। आज जिस तरह से खुदा के पाक रूह को पेश किया जाता है, आप सब जानते हैं खुदा का पाक रूह बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, लेकिन खुदा का पाक रूह सिर्फ और सिर्फ दिलेरी, कुव्वत और कुव्वत को जारी करता है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, क्योंकि खुदा का कलाम मेरा भी तरफदार नहीं है और ना आपका तरफदार है। खुदा का पाक रूह जब इंसानों की जिंदगी में आता है तो फिर वो शहजोर हो जाते हैं, वो दिलेरी और कुव्वत से भर जाते हैं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर खुदावंद यीशु मसीह को क्यों जरूरत पेश आई कि वो एक मददगार अपने लोगों के लिए भेजे। आप सब जानते हैं कि इससे पेशतर जब यीशु मसीह को सलीब दिया जाना था तो तमाम शागिर्द खौफ और डर की स्पिरिट में चले गए। वो डर गए मौत के डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि रोमी सिपाही आए और हमें भी ले जाएं और यीशु के साथ सलीब पर लटका दें, हमारे गलों को काट दें, हम पर जुल्म और सितम करें। सिर्फ और सिर्फ इस डर की स्पिरिट को खत्म करने के लिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्ग, नौजवानों, मेरे और आपके लिए जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने एक मददगार भेजा है जो मेरी और आपकी मदद करता है, जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, जो मेरे और आपके लिए रास्ते बनाता है। और ये खुदा के पाक रूह का ही काम है कि आज हम देखें किन किन शहरों से हैं, किन किन घरानों से हैं, किन किन खानदानों से हैं, किन किन मुल्कों से हैं, लेकिन खुदा के पाक रूह ने हमें एक जगह पर इकट्ठा किया है। खुदा के पाक रूह ने हमें अकाई में जोड़ा है और यही खुदा के पाक रूह का काम है कि जोड़ना, इकट्ठा करना, अकाई में लेकर आना, एक कर देना। ये खुदा के पाक रूह का काम है। खुदा के पाक रूह का हरगिज़ ये काम नहीं है कि जुदा कर देना, तोड़ देना, गिरा देना, लिटा देना, बल्कि खुदा का काम है गिरे हुओं को उठा लेना। पाक रूह का काम है इकट्ठे कर देना। खुदा के पाक रूह का काम है जोर और कुव्वत से भर देना। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, अगर आज खुदा के पाक रूह की कुव्वत और कुदरत ना होती तो आज हम इस चैनल के वसीला से कभी भी इकट्ठे ना होते और ना ही हम एक दूसरे के साथ खुदा के कलाम को, खुदा की मीठी शीरी बातों को बयान करते। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज इस बात को समझने की जरूरत है कि हम क्योंकि कमजोर थे इसलिए खुदा ने हमें एक मददगार भेजा जो मेरी और आपकी कुव्वत है, जो दिलेरी का काम करता है, जो हमें बोलने की ताकत देता है, जो वो गहरे गहरे भेद जिनको हम नहीं जानते वो हम पर जाहिर करता है। और ये खुदा के पाक रूह का काम है कि आखिर वक्त में बच्चे, बूढ़े, जवान नबूवतें करेंगे। ये खुदा के पाक रूह की हुजूरी है कि आज खुदा का पाक रूह
इस जगह पर ठहरा हुआ है और खुदा के पाक रूप के ठहरने की वजह से ये अकाई जो है वो मौजूद है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो अकाई का खुदा, मेरा और आपका खुदा जो है वो सुलह का खुदा है, मेरा और आपका खुदा जो है वो मोहब्बत का खुदा। सो आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि क्यों ये बात खुदा को पसंद आई, क्यों यीशु मसीह ने ये मुनासिब समझा कि मैं एक मददगार अपने लोगों के लिए भेजूंगा, क्योंकि लोग उस वक्त जो है वो कमजोरी की हालत में चले गए, लोग उस वक्त पस्ती की हालत में चले गए थे। इसलिए खुदा ने जो है उसके बेटे यीशु ने जो है तो मेरे और आपके लिए एक मददगार भेजा, ताकि हम जाएं और जाकर पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी करें। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, मैं अक्सर एक बात करता हूँ, वक्त चला जाए तो वक्त वापस नहीं आता, मौका हाथ से निकल जाए तो मौका वापस नहीं आता, जिंदगी चली जाए तो जिंदगी वापस नहीं आती। आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास वक्त भी है, मौका भी है, जिंदगी भी है, और खुदा का बेटा यीशु मसीह भी है जो हमें अपने पाक रूह के वसीला से जोर, कुव्वत और दिलेरी से भरता है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, अगर इससे पेश तक आपने कभी भी खुदा की पाक रूह कुदस को अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया, आज हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है, आज बड़ा अच्छा वक्त है कि हम खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में लें। जिस तरह वो 120 की जमात पर आ ठहरा और फटती हुई जुबानें उन पर आ ठहरी, और कलाम खुदा में लिखा है कि वो कुव्वत और दिलेरी से भर गए, और कलाम खुदा में भी लिखा है कि फिर उन्होंने जाकर पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी, हर एक शहर में, हर एक गांव में जाकर उन्होंने जो है वो अंजील की मुनादी की। वो सामरिया में गए, वो हर शहर में गए, हर इलाका में गए, लेकिन खुदा के पाक रूह से लबरेज होने के बाद। सो आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, खुदा के पाक रूह का ही काम है कि आज वो हमें अपने कलाम के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं चंद लफ्जों में आपके लिए दुआ करूंगा। खुदा कदूस, पहरों पर के खालिक और मालिक, यहोवा पाक खुदा, मैं तेरे शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करता हूँ खुदा, तेरे सारे फजल के लिए, प्यार के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए खुदा तेरे शुक्र। उस्मानी खुदा इन तमाम जिंदगियों के लिए खुदा तेरे पाक रूह कुदस को मांग, खुदा तेरे हुजूर में मिन्नत करता हूँ, तेरा अदना सा खात्म होते हुए यीशु मसीह के नाम से खुदा, तू आज शाम, आज रात खुदा इन तमाम जिंदगियों को खुदा अपने पाक रूह कुदस की कुदरत से भर दे। खुदा तेरे लोग तेरे पाक रूह से भर जाए, खुदा तेरे लोग दिलेरी से भर जाए, खुदा तेरे लोग तेरी मामूली से भर जाए खुदा, और फिर खुदा ये दुनिया की इंतहा तक खुदा तेरे यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं। आमीन, 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 आमीन।